This conference will now be recorded. Thanks, Bhushan, Kapil, Karishma, Akshata, Gauri, Pratibha. You are teachers to me, okay? Not me. You guys are teaching me a new lesson every day. Don't worry. Okay, guys. Chalo then. Let's start. Okay. Let others join in some time. Okay. We cannot wait. So the first question: what is Java and why Java? Tell me. What is Java and why Java? James Gosling developed it. Okay. So Java is an open source, okay, platform independent, secure and fast. Very good, Amruta. Very good, Kalyani, Pratham, Bhushan, Afreen, Mangesh. Very good. Thank you so much, Pramod. So much. Okay. Good, Ankush, Gayatri, reusability. Very good, Kunjan. Good, Manasvi, Anjali, Gita, Akshada. Yes, very good. So Java is an open source programming language. Okay. Java is an open source programming language, right? It's an object oriented programming. Oops. Oops सुना है किसी ने? Oops. Yes, oops का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे. So just I'm telling you. So Java is an
Object oriented programming. It is an open source, it is platform independent, secure and fast. Very good. Oh, secure and fast. Okay. Now, what is JVM, JRE and JDK acronyms? Java Virtual Machine. Good, Prajila, Viraj, Bhushan, Mangesh, Kalyani, Payal, Sampada, Pratibha, Kunjan, Rishali, Nikita, Revati. Very good, guys. Very good. Okay. So, yes, Amruta, absolutely right answer. So, Java Virtual Machine, JVM, JRE, Java Runtime Environment, and JDK Java Development Kit. और एक है राइट, मुझे लगता है 4 है या 3 ही रहते हैं. How many are there? Okay, 3 ही है. ठीक है then. ठीक है. Okay. You guys are smarter than me. Okay. ठीक है. Good. Very good. So, JRE holds JDK. Is that correct? Is this statement correct? JRE holds JDK. No, no, this is wrong. This is wrong statement. Okay. Then, okay, good. So JDK holds JRE. Absolutely right. JDK holds JRE. Absolutely right answer. Very good answer. JDK holds JRE. Very good. What is JIT? Very good. Just-in-time compilation. Absolutely right answer. So JIT says just-in-time compilation. Absolutely right. Okay, good. अभी हम लोगों ने क्या डाउनलोड किया था? Java. So first of all, guys, I would like to appreciate every one of your efforts. आप सब ने assignment किया, you have installed Java, you have an Eclipse on your machine, and then you just write and create a project. Very good. Okay, really appreciate your efforts. I mean, immediately after a first session, to complete those things are very impressive. Okay, good job. Now we download Java from Oracle site. ये सबको clear है? सबका installation हो चुका है? Everyone? Perfect, 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 perfect. Good. Yeah, yeah. Very good, very good. Everyone has Eclipse on your machine? Everyone? Yes? Yes? Very good, very good. What is Eclipse? मैंने क्या बोला था? Eclipse क्या है? What is Eclipse? Very good, Bhushan. It's an IDE, editor. IDE or editor. IDE का भी मतलब editor ही होता है, okay? But IDE का full form है Integrated Development Environment. Okay, so if you remember, हमने यहाँ पे कोड एडिटर IDE यूज किए थे, Eclipse, IntelliJ, Notepad, NetBeans. Yes, तो हमने लिया था Eclipse. Okay,
सो हमारे एडिटर से हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन थे, आईडी से कुछ एक्सपेक्टेशन थे। अगर आपको आईडी का फुल फॉर्म चाहिए तो आईडीई, इट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट environment. Okay, this is what your ID says. Clear है? Clear है? Yes, it's a smart ID. Absolutely right, Rev. It's a smart ID. Absolutely right. So हमको कोड कंपाइल करना था, debug मतलब एग्जीक्यूट करना था, और हमको आउटपुट देखना था, इसलिए हमने वो ऐड किया. Now we have started Eclipse. This is what our package explorer, और ये है आपका एक्सपर्ट व्यू, जहां पे आप लोगों को एक्सपर्ट बनना है. याद है? याद है मैंने बोला था? सो बताओ बाइनरी फाइल कहाँ पे बनती है? बाइनरी कोड आपका कौन से फोल्डर में होता है? बिन फोल्डर. एब्सोल्युटली राइट. एग्जैक्ट द सेम नेम. एग्जैक्ट द सेम नेम. सिर्फ एक्सटेंशन रहेगा डॉट क्लास. एब्सोल्युटली राइट आंसर गाइस. एब्सोल्युटली राइट. एग्जैक्ट द सेम नेम, सिर्फ एक्सटेंशन है डॉट क्लास, और सोर्स में वो कोड रहेगा जो आपको समझ में आता है. एनीवन कैन अंडरस्टैंड. Agreed with me? Agreed with me? No? Vaishnavi, you're not agreed with me? You're saying you're not agreed with me, Vaishnavi? Okay. Okay. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. So this human cannot understand. This is just a bytecode. Okay. Now bytecode समझने के लिए कौन रहता है हमारे पास? JVM, Java. जो एक मशीन पे लिखा गया बाइट कोड दूसरे मशीन पे समझता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जेडीके जो है वो भी इन्वायरमेंट स्पेसिफिक है. मतलब प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है. यस और नो? यस और नो? कि मेरा एक जेडीके जो है, एक जेडीके लिनक्स का है, एक मैक का है, एक विंडोज का है. तो मतलब मुझे अगर विंडोज का कोड मैक वाले को देना है तो भी वही फाइल चलेगी. क्यों? क्योंकि उनके पास वो मशीन लैंग्वेज समझने के लिए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जावा मतलब जेडीके इंस्टॉल्ड है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जावा मतलब जेडीके इंस्टॉल्ड है, जो कि अपना स्पेसिफिक लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज समझता है. ओके, दैट्स द थिंग. नाउ चलो अभी जाते हैं कोडिंग पे. आई वांट टू क्रिएट टुडे न्यू प्रोजेक्ट. कहां से बनाऊं? यहीं से बनता है क्या कुछ ऐसा? कैसे बनाओ बताओ, बताओ. फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट. वेरी गुड गौरी, वेरी गुड प्रथम, गुड साइली, रेवती, very good Bhushan, Ankush, very good. So I am creating a new Java project और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है Java Session 2. करेक्ट है? राइट? करेक्ट है? कोडिंग गाइडलाइन राइट? नो? 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 व्हाई? वेरी गुड गायत्री, प्रथम, गुड आंसर. सो प्रोजेक्ट नेम का कोडिंग गाइडलाइन क्या बोलता है? कोडिंग गाइडलाइन क्या बोलता है? स्टार्ट्स विथ कैपिटल. वेरी गुड रेवती. एंड followed with a camel case. Starts with a capital and followed with a camel case.
सी अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लो भूषण, ओके, बाद में आप करके देखना इफ यू आस्क मी, ओके, आप करके देख सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, बट जस्ट आई एम सजेस्टिंग, क्योंकि ये आपका इनिशियल सेशन है, बाद में आप कर सकते हो पैरेलली, अभी इनिशियल सेशन है, थोड़ा सा समझ लीजिए, स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक है। सो अगर मैंने ये बनाया तो ये फोल्डर कहाँ बन रहा है, देखो वर्क स्पेस में। नाउ व्हाट इज वर्क स्पेस, व्हाट इज वर्क स्पेस, व्हाट इज वर्क स्पेस, वेयर वी वर्क, एब्सोल्युटली राइट। तो ये लो मैंने किया फिनिश, और मुझे मेरा बन गया एक और प्रोजेक्ट एक और प्रोजेक्ट बन गया। मैंने क्या बोला था कि आई कैन होल्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट विद इन दिस पैकेज एक्सप्लोरर, ये एक और प्रोजेक्ट बन गया। तो अगर मैं जाके देखूं यहाँ पे, सी आई कैन सी अनदर प्रोजेक्ट टुडे, सेम मल्टीपल फाइल्स, सेम मल्टीपल फाइल, ये क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? यस, ओके। सो मंगेश, पास्कल केस का मतलब होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल, ओके, एंड देन आपका जैसे भी आपको बनाना है वैसे, उसको पास्कल केस बोलते हैं। When camel case we said, camel case is every letter, every word का first letter is capital. That is what camel case is. That does not say कि मेरा पहला वाला कैपिटल बनाओ, पहला आपका स्मॉल भी हो सकता है, ओके, क्लियर? चलो, I forgot that question last time, last session में आपने पूछा था, I forgot it, that's why, so sorry for that. Okay, now what is pin? A bin, okay, Triveni, you are talking about bin, you write pin, yeah, okay. हाँ, so that's okay, वो आपके जावा वर्जन पे भी डिपेंड करता है, you will get it, okay, just some time, okay, just some time guys, I'll show you that, don't worry, okay। अभी मुझे अभी पैकेज बनाना है, what is package, what is package, what is package guys? A group of classes, collection of classes, very good Prajila, Bhushan, Viraj, Pratham, Ankush, Rishali, Pratibha, Prajila, very good, Mrita, Nikita, very good, Anjani, Revti, Deepak, Vaishnavi, Ankita, very good, Shalaka, Sanjeevni, Manasvi, very good, okay, so it says a collection of classes, so right click new and a package, right click new and package, मैं बनाता हूँ पैकेज अभी, let's say Java package 2, अच्छा है, is that the right coding guideline? No, this is wrong, small case and then camel case, very good, meaningful, small case and then camel case, start with small and followed by a camel case, very good. So Java package 2, is it okay, is it okay, Java package 2। अभी मुझे बनाना है इसमें क्लास, सो इसके पहले आप देख लो, इसके अंदर हमारा जावा सेशन 2 के अंदर ये देखो एक पैकेज
का फोल्डर भी बन गया, दोनों जगह। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, अभी मुझे बनाना है क्लास। टेल मी व्हाट इज क्लास, व्हाट इज क्लास। मैंने बोला था राइट क्लिक ऑन योर पैकेज, न्यू एंड क्लास। वेरी गुड भूषण, गायत्री, दीप्ति, करिश्मा, रेवती, प्रियंका, अंकिता, प्रथम, प्रतिभा, प्रशाली, शलाका, ओके, निकत, यूजर, हु इज यूजर, त्रिवेणी, गुड। सो कुंजन देखते हैं, जस्ट थोड़ा समय दीजिए। ओके, विल सी एवरीवन्स प्रॉब्लम। ओके, नाउ what we say, we have created a project, we have created a package, and now we are creating a template. So class is a template which will help you to write your code. तो आज के लिए इतना ही हमको याद रखना था जो मैंने बोला था, template to write your code. So मुझे क्या कोड लिखना है, मुझे लिखना है I want to write my code like this. So मैंने बोल दिया Java. Okay, what is the coding guideline? Very good, Pratham. Similar to your project. Very good, Amrita. Similar to your project. Absolutely right answer. Okay, so Java session, क्या नाम दे इसको, Java session 2 ऐसे दे दो, चलेगा? 2 class, Java session 2 class ऐसे दे देते, ठीक है? Java session 2 class, and I have to select this public static void main. वो भी बताता हूँ क्यों. And let's finish today. So this is how your structure created. This is how your under the SID you have your .java file. Under the bin you have your .class file. Clear है? Clear है everyone? Clear है everyone? इसका आंसर वही है मंगेश, अगर आप देते भी हो तो प्रोजेक्ट में आपको एरर नहीं आएगा, राइट? एंड में भी देखोगे तो भी पैकेज में एरर नहीं आता है, लेकिन इशू ये है कि आपका कोडिंग गाइडलाइन फॉलो नहीं होता है। तो आप दे तो सकते हो, लेकिन जब आप कोडिंग करोगे और आपका कोड जब रिव्यू होगा बाय योर लीड्स एंड ऑल, सो आपको रिव्यू कमेंट्स आएंगे, और हर एक रिव्यू कमेंट आपकी रेटिंग डिफाइन करता है। सब बोलेंगे अरे मंगेश को कोडिंग नहीं आता, मंगेश को कोडिंग गाइडलाइन भी नहीं पता। We will see Deepak Kalyani. Okay, just a second, मैं वही बोल रहा हूँ सबको, just a second. Okay, चलो then let's move back to the code. Now अभी मैं कुछ terms बता रहा हूँ, just remember those terms. I'm telling you some terms, just remember those terms. Okay, what is this semicolon? मैं बड़ा करता हूँ अभी, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो आपको सबको दिखे। एक सेकंड दीजिए। चलो, what is this semicolon says? बताओ। Absolutely right, Amruta. Rishali. Absolutely right. Prajila, very good. इसको बोलते हैं end of statement. Absolutely right. End of statement. इसको बोलते हैं end of statement. सेमीकोलन को बोलते हैं
एंड ऑफ स्टेटमेंट। गुड निकत। एंड ऑफ स्टेटमेंट का मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सबको समझता है। आई एम अ बॉय, ये एक स्टेटमेंट हो गया। आप डॉट देते हो उसके बाद, राइट? यस और नो? आई एम स्टडीइंग एट फॉर एग्जांपल XYZ स्कूल डॉट। ये आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, राइट? तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि मैंने बोला आई एम अ बॉय और उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे जाके लिख सकता हूँ? नो, मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट इसके सामने लिख सकता हूँ। यस और नो? यस और नो? लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ कि नहीं? तो वैसा ही इसके सामने भी है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके सामने नहीं लिख सकते हो। इसके सामने आप ये पब्लिक क्लास या ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो, ये उठा के मैंने Ctrl+X कर दिया, ये यहाँ पे कर दूंगा तो भी मुझे कोई एरर नहीं है। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस मंगेश? बट डू यू थिंक मंगेश दिस लुक्स गुड? डू यू थिंक दिस इज कोडिंग स्टैंडर्ड? Mangesh? No. Yes, we can use this and write multiple statement in the one line. तो इसलिए कभी मत बोलना कि एंड ऑफ स्टेटमेंट का मतलब एंड ऑफ लाइन। ये चीज अपने दिमाग से हटा दो। ये डिफरेंस अभी क्लियर है? एवरीवन? एवरीवन क्लियर है एंड ऑफ स्टेटमेंट और एंड ऑफ लाइन का मतलब? ये क्लियर है सबको? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यस? यस? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। So this is my end of statement. Now next question. Now next question. What is this? Oh, okay. Deepak is saying one more time. Sorry, guys. I'll repeat one more time. Okay. Deepak wants me to repeat. So Deepak, इसका मतलब है end of statement। मतलब statement का मतलब है अपने statements होते हैं कि हाय माय नेम इज दीपक पाटिल। सो एक स्टेटमेंट हो गया। उसके आगे आप लिखोगे आई एम स्टेइंग एट लेट्स से पुणे फॉर एग्जांपल। सो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट हो गया। यस और नो? तो हर एक स्टेटमेंट के पहले आपका फुल स्टॉप आता है, लेकिन हर एक स्टेटमेंट के बाद क्या आप नए लाइन पे जाते हो? अगर आपको मैंने बोला कि एक लेटर लिखो तो फुल स्टॉप के बाद आप नए नए लाइन पे लिखोगे या आप एक ही लाइन में लिख सकते हो? वन लाइन, राइट? यू कैन राइट इन अ वन लाइन। तो स्टेटमेंट का मतलब है हियर माय स्टेटमेंट कम डिफाइन। क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट? कि ये क्लास ये पैकेज के अंदर है। ये एक स्टेटमेंट खत्म हो गया। ये क्लास ये पैकेज के अंदर है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। इसलिए उसने बोला उसको एंड ऑफ स्टेटमेंट। अभी क्लियर है सबको? यस? परफेक्ट। चलो, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? curly bracket, very good. Starting block, very good. Curly opening bracket, good. Bhushan, Pratham, Nikat, Karishma. It is called a scope. इसको बोलते हैं स्कोप। तो क्लास का स्कोप कहां से चालू हो रहा है बताओ? ये क्लास है। ये क्लास का स्कोप कहां से चालू हो रहा है? यहां से। क्लास का स्कोप शुरू हो रहा है यहां से। ये क्लियर है? स्कोप। तो अभी क्लास का स्कोप एंड कहां पे हो रहा है? यहां पे, यहां पे, या ये यहां पे? फर्स्ट एंडिंग और सेकंड एंडिंग, तो इसको बोलते हैं स्टार्ट ऑफ स्कोप। लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 10 कहां पे हो रहा है? क्लास का स्कोप। तो अगर आप देखोगे
तो देखो मैंने जैसे यहाँ पे स्पेस के बाद यहाँ पे क्लिक किया है तो देखो ये हाईलाइट हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये हाईलाइट हुआ है नीचे वाला कर्ली ब्रैकेट। तो ये बता रहा है इसका स्टार्ट यहाँ पे हुआ तो एंड हो रहा है देखो सेकंड वाले पे। ये देखो आप सिलेक्ट करोगे तो पूरा हाईलाइट हो जाएगा। वैसे ही ये मेन मेथड, ये फंक्शन है, मेथड है, इसका स्कोप के सामने मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये इसने कौन सा हाईलाइट किया। तो इसका स्कोप कहाँ पे खत्म हो रहा है? लाइन नंबर 8 पे। ये क्लियर है? ये क्लियर है? मेरे क्लास का तो स्कोप बहुत बड़ा है। क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स, फंक्शंस, आपके वेरिएबल्स सब हो सकते हैं, राइट? लेकिन ये एक मेथड है। मेथड का स्कोप यहाँ से चालू और ये यहाँ पे खत्म। अंडरस्टूड? 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 तो क्लास का स्कोप चालू होता है यहाँ से यहाँ तक, मेथड का चालू हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। अभी क्लियर है सबको? यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? एवरीवन, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ये स्कोप है। ओके ओके। अभी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस 2/? वेरी गुड आंसर प्रजिला, रशाली, निकत, भूषण, अमृता, स्वप्निल, प्रथम, प्रतिभा, मानसवी, आफरीन। वेरी गुड अंकुश, वेरी स्पेसिफिक, गुड। सो डबल स्लैश को बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल लाइन कमेंट। मतलब whenever you execute a code, this line will not execute। समझा? समझा इसका मतलब? जब भी आप कोड रन करोगे, जब भी आप कोड रन करोगे, तब ये कमेंट वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो क्या मतलब है? तो जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा कमेंट कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने बोला आई एम गोइंग टू प्रिंट माय फर्स्ट स्टेटमेंट टुडे। तो ये किसको नहीं समझेगा कि इसके नीचे मैं क्या करने वाला हूँ ये रीड करने के बाद? Who is the person who is not going to understand this? Who is the person? No one, right? Everyone। मतलब अगर आपका कोड रिव्यू आपका लीड करता है तो उसको भी समझ में आएगा। ओके, इसका मतलब है स्वप्निल यहाँ पे आज अपना फर्स्ट स्टेटमेंट लिखने वाला है, या अमृता अपना यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखने वाली है। यस और नो? यस और नो? यस। So always we need to give a proper comment. This is just an input. Always we need to give a proper comment. This is just an input. Always we need to give a proper comment. तो किसी को भी आपका कोड रीडेबल होगा। सो ये क्या हेल्प करता है? ये क्या हेल्प करता है? कमेंट। कमेंट कहाँ पे हेल्प करता है? सो आप लिख सकते हो कि कमेंट विल हेल्प यू टू मेक योर कोड मोर रीडेबल। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? अभी समझ में आया व्हाट इज कमेंट? एवरीवन प्लीज आंसर गाइस, प्लीज आंसर। यस, परफेक्ट, 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 परफेक्ट। Aniruddha given very good answer. Eyes, very good. Yes. Okay, good. Something innovative. Okay, good guys, good.
तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अभी डू यू थिंक ये मैं तब से मल्टी लाइन कमेंट दे रहा हूं? डू यू थिंक तब से मैं मल्टी लाइन कमेंट दे रहा हूं? यस और नो? तब से मैं कमेंट मल्टी लाइन कमेंट दे रहा हूं और आपका नोट्स बना रहा हूं नीचे। यस और नो? यस और नो? We are making a notes for you by commenting। मैंने बोला था रीडेबल। तो देखो, आप जब भी ये रीड करोगे अपने फुल करियर में अभी आगे चल के, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा मेरा ये ओके एंड ऑफ स्टेटमेंट है। कुछ तो हमने यहाँ पे लिख के रखा है रीडेबल करने के लिए। तो मल्टी लाइन कमेंट कैसे देते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो, सो हाउ डू वी स्टार्ट मल्टी लाइन? गिव बैकस्लैश देन स्टार, गिव बैकस्लैश देन स्टार। कैसे देते मल्टी लाइन कमेंट्स? गिव बैकस्लैश देन स्टार। मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूं। फिर एंटर। जैसे बैकस्लैश देके स्टार दोगे, फिर करो एंटर। जैसे एंटर करोगे आपको एक स्टार मिलेगा और उस स्टार के बाद बैकस्लैश दे दो, खत्म हो गया। फिर इसके बीच में आपको जितने कमेंट देने देते जाओ। ये देखो कितना बड़ा कमेंट्स बन जाएगा फिर आपका। सो बैकस्लैश स्टार एंड स्टार बैकस्लैश notes to the multi-line comment। multi-line comment कैसे देते हैं? So backslash star, then this and star backslash। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? एवरीवन, इज इट क्लियर? एवरीवन, इज इट क्लियर? ये मैं डबल कोट में दे देता हूँ। ये नहीं यार, ये एरर देगा आपको। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार बैकस्लैश। ओके, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट आपका। ये हो गया आपका मल्टी लाइन कमेंट। अभी किसी को भी क्वेश्चन नहीं आया ये रेड क्यों दिख रहा है या जो भी है डार्क ब्राउन क्यों दिख रहा है? Nobody has a question why these are dark brown? What it is? यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूं मैं। पब्लिक क्लास void। Okay, this is unique keyword for Java defined words। Very good, Revti। These are the reserved keyword in Java। These are the reserved keyword in Java। क्या है ये? These are the reserved keyword in Java। reserve, जैसे आप अपने सीट का रिजर्वेशन करते हो। आप जब when you are traveling via train, you are doing a reservation, yes or no? When you are traveling via flight, you do the reservation, yes or no? सिमिलर वे जावा ने जब अपना ट्रैवलिंग शुरू किया, जब उसने अपना जर्नी शुरू किया, it defined some reserved keyword like public, void, class, static, package, private, protected, so many। So many reserved keyword।
कहां तक क्लियर है? I'll just keep myself on mute, okay? I'll repeat one more time. Okay, I'll repeat one more time. No, don't worry, guys. I just keep myself on mute. I'll repeat one more time. When I say a word, मैंने बोला था it is a reserved keywords. Reserved keyword का मतलब है जावा ने जावा के अंदर कुछ keywords जो है वो reserved कर लिए हैं. ओके, reserved कर लिए मतलब whenever you use public, पूरा क्लास पब्लिक हो गया. ये उसने डिफाइन कर दिया है. ये उसने डिफाइन कर दिया है. That is called reserved. So as I mentioned, when Java starts its journey, when Java starts their journey, that time they reserved some of the keyword for their future development. कि public मैं ऐसे यूज करूंगा जावा के अंदर. तो पब्लिक का मतलब है कोई भी क्लास चाहे कोई भी मेथड पब्लिक रही तो कहीं से भी मैं एक्सेस कर सकता हूं. सिंपल. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस? यस? Hey guys, who is this 356? Can you please repeat your name? Do not log in with such names, okay? Please. Don't do that. Log in with your proper name, guys. Okay, I didn't understand to whom I'm talking to, okay? Please. Just a request. Okay, so I'll repeat one more time, okay? I'll repeat one more time. When I said, ये जितना भी ब्राउन कलर में दिख रहा है ये क्या है? तो ये है रिजर्व्ड कीवर्ड इन जावा. These are reserved keyword in Java. मतलब जावा में आप जहां से भी ये यूज करोगे, these are the reserved keyword in Java. मतलब जावा के अंदर ये रिजर्व्ड है. रिजर्व्ड है मतलब इसका खुद का इम्प्लीमेंटेशन रिजर्व्ड है. सो whenever you say public, इसका मतलब है मेरा क्लास पब्लिक है. Whenever I say public for method, इसका मतलब है मेरा मेथड पब्लिक है. Clear? That is how it is saying a reserved. तो ये रिजर्व कीवर्ड बहुत सारे हम आगे देखने वाले. डोंट वरी. अभी ये हाई लेवल समझो. मैं एकदम डिटेल में जाऊंगा तो आपको सारे बाउंसर्स जाएंगे, ओके? क्योंकि अभी तक हमने बेस चालू नहीं किया है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगेन दिस लीव. ओके, क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है. तो लेट्स मूव. नाउ व्हाट इज मेन? व्हाट इज मेन? Very good. It's a method. Method or function both are same. Okay, don't worry. Method and function both are same. सिर्फ मेथड जावा में बोलते हैं, फंक्शन C++ में बोलते थे, और कोई डिफरेंस नहीं है. दोनों सेम है. ओके, ये वो भी बाद में देखेंगे हम लोग. चलो. सो जावा इज अ मेन मेथड, ओके, और फंक्शन. वेरी गुड. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? सो मेन इज अ फंक्शन. Absolutely right, Revti. It's a entry point to any Java program.
It is an entry point to any Java program. Entry point. I am saying entry point. I am saying entry point. क्या मतलब है एंट्री पॉइंट का? एंट्री पॉइंट का मतलब है कि मुझे जावा का कुछ प्रोग्राम रन करने के लिए बोला है, लेट्स से रेवती ने। तो जावा को, जेडीके को पता होना चाहिए कि मुझे स्टार्ट कहां से करना है, तो मेरा स्कोप कहां से एंट्री पॉइंट का, और स्कोप एंड कहां पे है। तो जावा हमेशा अपना एग्जीक्यूशन चालू करेगा यहां से और खत्म करेगा यहां तक, इसलिए इसको बोलते एंट्री पॉइंट। और ये हो गया एंट्री पॉइंट का स्टार्ट ऑफ द स्कोप, और ये हो गया एंट्री पॉइंट का एंड ऑफ द स्कोप। तो मतलब एंट्री पॉइंट का स्कोप है यहां से यहां तक। क्लियर है व्हाट आई एम सेइंग? 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 यहां तक क्लियर है सबको? यस। मैं ये भी बताऊंगा ये एंट्री पॉइंट ऐसा क्यों बना है, लेकिन मुझे एक दो सेशन देना, मैं आपको समझाऊंगा ये चीजें आगे चल के क्यों ऐसा एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये भी मैं बस समझाऊंगा आपको ऐसा ही क्यों। ओके, ऐसा ही क्यों ये मैं समझाऊंगा आपको आगे चल के। यहां तक क्लियर है? तो अभी मुझे बताइए, मैं बनाता हूं अभी दो एंट्री पॉइंट ये क्लास में। ये मैंने बना दिए दो एंट्री पॉइंट, एक बना दिया कैपिटल, एक बना दिया स्मॉल। कितने एंट्री पॉइंट है अभी मेरे पास? या इसको स्मॉल कर देता हूँ, ऐसे ही कर देता हूँ, सेम ही कर देता हूँ। कितने एंट्री पॉइंट है अभी मेरे पास? वेरी गुड, करिश्मा इज सेइंग 1, भूषण इज सेइंग 2, प्रतिभा 1, अंजनी 2, प्रजिला 2, निकिता 2, साइली, वैशाली, अमृता 1, प्रथम 1, who is user I don't know, but 1, Swapnil 1, Anirudh, Manasvi, guys आंसर है 1, आंसर है 1, आंसर है 1। क्यों? क्योंकि वो देखता है स्मॉल मेन, यहाँ पे चालू हो रहा है कैपिटल मेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका? Java is case sensitive. Java is case sensitive. Java is case sensitive. Yes or no? Java is case sensitive. इसका मतलब है कि there is always a one main. इसका मतलब है there is always one main. There is always a one main. ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर है एवरीवन? यस, बिकॉज जावा इज केस सेंसिटिव। तो एक और जावा का वाई जावा में आता है केस सेंसिटिव। ये अभी हटा दूं मैं? ये मैंने हटा दिया, तो अभी मेरे पास एक ही मेन मेथड है। क्लियर है अभी सबको यहाँ तक एवरीवन?
Is it clear? Is it clear, guys? Everyone? Yes? 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 चलो देन आज हमारा पहला प्रिंट करते हैं हम लोग. Anyone can tell me how do I print? Anyone can tell me how do I print? Direct print? Direct print? Very good, Karishma. Santosh. Pratap. Okay. Revti. Mangesh. Nikat. Sangeeta. Vishen. Ankush. चलो. So हम लोग लिखते हैं system dot out dot. But can you see? किसी को एक दिख रहा है, मैं जैसे डॉट दे रहा हूं तो किसी को ये दिख रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, ये देखो मल्टीपल मेथड्स. कैन यू सी दैट एवरीवन? कैन यू सी दैट एवरीवन? ये देखो जैसे डॉट दिया मैंने, तो मैंने क्या बोला था, इक्लिप्स क्या है? इक्लिप्स इज अ स्मार्ट आईडी और ये है इंटेलिजेंस. एब्सोल्युटली राइट अमृता, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस. देखो उसने मेरे को, इंटेलिजेंस का मतलब है इट इज गिविंग यू a proper feedback or it is giving you a proper suggestion. आउट के बाद आप इसमें से कोई भी एक मेथड ले सकते हो. मैंने ले ली println system dot out dot println. तो ये है इक्लिप्स का बेनिफिट. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये है स्मार्ट आईडी, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस. जैसे आप डॉट दोगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस. और देखो जैसे मैं प्रिंट एलन पे माउस लेके जाता हूँ, ये दिखा रहा है मेरे को जावा पी, मतलब जावा का डॉक्यूमेंटेशन. कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? जावा पी गाइस, कैन यू सी दिस? जावा पी, जावा का डॉक्यूमेंटेशन. ये देखो प्रिंट एलन क्या करता है, उसने पूरा लिख के दे दिया यहाँ पे. अंडरस्टूड? 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 तो हमने देखा इंटेलिजेंस, हमने देखा जावा डॉक्यूमेंटेशन. ओके, क्लियर है? क्लियर है? यस. यस. माय सन वांटेड टू राइट अ कोड. ओके, हमेशा मेरे लैपटॉप पे बैठ जाता है एंड ही राइट ऑल दोस कोड. ही राइट आपका लॉजिक, अभी वो पैटर्न वैटर्न फॉर लूप, ये सब कुछ वो लिख लेता है, सारे कोडिंग कर लेता है. ओके, ही इज 6 year old, सो ही इज डूइंग ऑल दोस कोडिंग. अभी एक दिन मेरे ऑफिस के और कुछ और इम्पोर्टेंट काम चल रहा था, उसमें जाके उसने कोडिंग कर दी. ओके, उसने लिख दिया and I was seeing system.out.println Ishan. I said why? So that was my fault, not his fault. Okay, इसके लिए मैं बहुत गाली खा चुका हूँ. आप लोगों को हंसी आएगी, लेकिन my wife she scolded me a lot. She said why you're teaching him coding? मैंने बोला मैंने नहीं सिखाया. Definitely I teach him. Okay, मैंने नहीं सिखाया तो उसका कोडिंग सिखाना बंद करवा दिया. वो भी मैं शांत थोड़ी रहूंगा. चुपचाप मैं अपने, मेरे जो ऑफिस है घर का, उसमें चुपचाप बैठ के मैं उसको बताता हूँ जो भी बताना है. ओके, सो बॉयज आर वेरी स्मार्ट. ओके गर्ल्स, so yeah, 6 years he is doing coding, he is writing any logic, you can give him to print anything, he will write it. Yeah, so that's how but वो अच्छा भी नहीं है. Yes, you are right Deepak.
चलो अभी इसमें हम लोग प्रिंट करते हैं आज दीपक का नाम। सो डबल कोट में मैंने दे दिया, डबल कोट में मैंने दे दिया दीपक। श्योर रोजिला, यू आर हियर फॉर दैट, ओके। यू विल बी मच मोर बेटर देन हिम, डोंट वरी। उसको सेलेनियम पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं, ओके। पता चला नहीं तो बोलेगा कि अपने डैडू का पूरा काम उसको करना है, मेरी जॉब खा जाएगा वो। Okay, this is good, good. Okay, just a joke. Okay. बट मैं हमेशा बोलता हूँ, आप बाहर कुछ भी हो, घर में आप वाइफ के सामने आपकी नहीं चलती है, ओके। डांट तो मेरे को ही पड़ी कि तुमने ही पढ़ाया इसको, ओके। बाहर आप कुछ भी हो, बाहर आपको 100 लोग रिपोर्ट करते हो, फिर घर में आप तो रिपोर्ट किसी और को ही करते हो। ऑल गर्ल्स विल लाफ, आई नो। बहुत खुशी होती होगी ये सुन के आप लोगों को, राइट? ओके, चलो, नो प्रॉब्लम। So now I am printing system.out.println Deepak. So मैंने डबल कोट में दीपक दिया। What it means? Can you tell me? What it means in double quote? कौन बता सकता है? What it means in double quote? Absolutely right, Rishali. Very good, Amrita. Very good, Prajila. Karishma, Sangeeta. Boys. Pratham, very good. Deepak. Anirudh, Swapnil. Anjani, very good, Anjani. Good girls. Very good going. प्रतिभा, बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग। तो अगर मुझे कुछ अल्फा न्यूमरिक का मतलब सबको समझता है कि बताओ? अल्फा न्यूमरिक सबको समझता है? अल्फा न्यूमरिक समझता है? नहीं समझता है तो आई टेल यू। लेट्स से मैंने बोल दिया 2 3 4 रेवती, ओके, एंड 4 5 6। सो दिस इज अल्फा न्यूमरिक। इसमें देखो अल्फाबेट भी है और इसमें नंबर्स भी है, न्यूमरिक नंबर्स भी है। इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमरिक। अगर मुझे अल्फा न्यूमरिक कुछ प्रिंट करना है या ओनली अल्फाबेट्स, अल्फाबेट सबको पता है, अल्फाबेट सबको पता है। लेट्स से दिस इज अल्फाबेट्स, यस यस, तो आई कैन यूज अ डबल कोट एंड दिस विल प्रिंट एज इट इज। जो भी उस डबल कोट के बीच में है, जो भी आपने डबल कोट के बीच में लिखा है वो वैसे के वैसे प्रिंट करेगा, वो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। तो स्ट्रिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड न्यूमरिक और अल्फाबेट्स, दैट इज अ स्ट्रिंग। अभी समझा? ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अभी स्ट्रिंग हम अलग से देखेंगे, बट अभी यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है एवरीवन? एवरीवन, इज इट क्लियर? चलो अभी मैं आपको दिखाता हूं हाउ डू वी सेव इट, हाउ डू वी सेव दिस कोड। Look at my mouse, okay? Look at my mouse. Can you see here? There are two save. Can you see? ये देखो ऊपर, edit के नीचे, file के नीचे. Can you see everyone? Look at the mouse. Look at the mouse. Look at here. दिख रहा है? एक है save, जो कि current फाइल को सेव करेगा। एक है save all, जो कि जो पुरानी भी फाइल होगी, कोई मल्टीपल फाइल ओपन होगी। लेट्स से अभी यहाँ पे 2 फाइल है, हो सकता है 10 फाइल ओपन हो, 1 टैब 2 टैब 3 4 5 6 लाइक 10। जब मैं सेव ऑल बोलूंगा, जिस जिस फाइल में सेव करने की जरूरत है वो सबको सेव करेगा। पहले मैं करता हूँ सिंगल फाइल, जो करंट फाइल है उसको सेव करता है। ये देखो, पहले मैं आई एम क्लिकिंग ऑन दिस सिंगल, सी इट इज सेव्ड ऑन दिस। अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ तो देखो सेव ऑल आ रहा है, क्योंकि मेरा करंट फाइल यहाँ पे है, तो ये सेव दिख रहा है एनेबल, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी सेव है। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? सबको दिख रहा है? करंट फाइल पे देखो मुझे सेव नहीं आ रहा है,
लेकिन मुझे सेव ऑल जरूर आ रहा है। कैन यू सी दिस? यस। लेकिन अगर जिस फाइल पे सेव करना है वहां जाऊंगा तो देखो सेव भी आ गया। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस गाइस? यस। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं सेव ऑल करता हूँ, तो इसका मतलब वो फाइल भी सेव हो जाएगी। ठीक है, ये देखो सेव ऑल। अभी ये फाइल पे जाओ तो यहाँ पे भी देखो कुछ भी एनेबल नहीं है क्योंकि आपने सेव ऑल कर दिया। अभी सेव और सेव ऑल का डिफरेंस क्लियर है? क्लियर है? सेव विल सेव द करंट फाइल, सेव ऑल विल सेव द ऑल द फाइल्स। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको यहाँ तक? तो मैंने कुछ अपडेट किया, कुछ कोड लिखा और मैंने सेव किया। अभी मुझे ये फाइल मतलब ये कोड रन करना है, मुझे ये कोड रन करना है। आराम से देखना गाइस, ओके? मुझे ये कोड रन करना है तो मैं क्या करूंगा? राइट क्लिक ऑन दिस फाइल। कहीं पे भी ये फाइल पे कहीं पे भी जाके राइट क्लिक करो, कहीं पे भी। आई एम सेइंग कहीं पे भी, ओके? कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी करो राइट क्लिक। ये देखो, कैन यू सी? कहीं से भी राइट क्लिक। कैन यू सी रन एज? कैन यू सी रन एज? Right click on this file anywhere. Right click on this file anywhere. Click on run as. Run as नहीं दिख रहा है? त्रिवेणी यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको run as? Can you? Is my screen visible, guys? Yes. Okay. So Triveni, is that something missing? Please check your connectivity. Okay. Okay. So what I'm saying, right click run as. Can you see the first option, Java application? Everyone, can you see the first option, Java application? Yes. 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 यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको गाइस? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो जैसे ही मैं राइट क्लिक करके रन एज करके जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा, सी माय कोड विल रन एंड यू विल सी द आउटपुट। कैन यू सी? इट विल प्रिंट द आउटपुट इन द कंसोल। मैंने बोला था अगर मैं ये छोटा करूं तो देखो कंसोल कहाँ पे आता है, नीचे। मैंने बोला था आपको यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका, ये देखो। कैन यू सी? इट इज प्रिंटिंग दीपक। कैन यू सी? इट इज प्रिंटिंग दीपक। Everyone, is it clear? Everyone, is it clear? Is it clear, guys? Will it make sense, everyone? Will it make sense, everyone? हाँ, मैं आपको मल्टीपल तरीके दिखाऊंगा, डोंट वरी प्रथम। ओके, दिस इज द फर्स्ट वे। ओके, डोंट वरी प्रथम। ओके, so first way to run the code. Okay, so first way is right click anywhere on file, run as, and Java application. क्लियर? ये हो गया फर्स्ट वे। अभी दूसरा वे देखो, मैं फिर से सेव कर दिया मैंने, सेव ऑल करके। ये ग्रीन बटन दिख रहा है सबको यहाँ पे? कैन यू सी ग्रीन बटन प्ले का? कैन यू सी ग्रीन बटन प्ले का? एवरीवन, एवरीवन, कैन यू सी दिस ग्रीन बटन प्ले वाला? यस। देखो उस पे माउस ओवर करोगे तो रन करने के लिए आता है।
यहाँ ड्रॉप डाउन से आप जाके अपना क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हो। जावा सेशन 2, कैन यू सी दिस? Java session 2, can you see this? Yes. So right click on this green button and click on the class. See, it executes. Okay, this is the second way. Okay, so this is the second way. Right click on green play button and click on class. ये हो गया सेकंड वे, ये हो गया आपका सेकंड वे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्लियर है? अभी थर्ड वे दिखाता हूं। ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको ट्री स्ट्रक्चर आपका प्रोजेक्ट का, 1 2 3 4 दिख रहा है? फिर से सेव कर दो। ये दिख रहा है लेफ्ट साइड में 1 2 3 4, प्रोजेक्ट नेम SRC पैकेज एंड क्लास। कैन यू सी दिस एवरीवन? यस। सो थर्ड वे इज राइट क्लिक हियर, ये क्लास पे जाके आप राइट क्लिक करो फ्रॉम द पैकेज एक्सप्लोरर, अगेन रन एज एंड जावा एप्लीकेशन। क्लियर? क्लियर? क्लास पे जाके राइट क्लिक रन एज एन जावा एप्लीकेशन। क्लियर? क्लियर everyone? So just click and see, you will get the output. So what you need to do the third way is, what you need to do the third way, so right click on class from package explorer, okay, and then run as Java application. अभी क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है तीनों वे? और एक है शॉर्टकट, बट वो बाद में दिखाऊंगा मैं, ठीक है? अभी नहीं, वो भी बाद में दिखाऊंगा, अभी कंफ्यूजन नहीं। यहां तक क्लियर है सबको? एवरीवन? यस। चलो अभी मैं आपको प्रिंट करने का शॉर्टकट दिखाता हूँ। ओके, अभी मैं आपको प्रिंट करने का शॉर्टकट दिखाता हूँ। SYSO, क्या टाइप करना है? SYSO, टाइप SYSO। आपके लैपटॉप पे कंट्रोल एंड स्पेस, कंट्रोल एंड स्पेस, फिर से ओके, क्या टाइप करना है? SYSO, SYSO, एंड लैपटॉप पे कंट्रोल होल्ड करके प्रेस द स्पेस बार। You will get another, you will get another suggestions. Do you want to take the print? तो देखो इसने यहाँ पे दिखा दिया, आपको ये चाहिए? मैंने बोला यस, क्लिक क्लिक। Understood? Understood? Understood shortcut? Understood shortcut? Understood shortcut? चलो तो फिर अभी मैं आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन दिखाता हूँ टी सिस्टम का। अभी मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन दिखाता हूँ टी सिस्टम का। गाइस, आई ऑलवेज सेड राइट, आई एम पैरेलली गोइंग टू शेयर द इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड विल बी प्रिपेयर फॉर यू। मेरा सजेशन है टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू, मेरा एक सजेशन है आप सबके साथ, कि जब भी ऐसा कुछ लगता है अगर आपको नोट्स बनाना है तो यू कैन मेक इट विद दिस इंटरव्यू क्वेश्चंस, आपको बहुत हेल्प होगा। ओके, आपको बहुत हेल्प होगा। सो लेट मी क्रिएट a one interview question. Okay, मैंने यहाँ पे बोल दिया ओके किस
प्रतिभा। बताओ कितने लाइन में आउटपुट आएगा और क्या क्या प्रिंट होगा। कितने लाइन में आउटपुट आएगा और क्या क्या प्रिंट होगा। 4 लाइन, 4 लाइन, 4 line, 1 line. Who is 1 line? Rishi. Okay. 4 line. Rishali 1 line. Okay. फोर लाइन दीपक, शलाका, त्रिवेणी एंड प्रतिभा। ओके चलो मैं अभी रन करके दिखाता हूँ। आई एम डायरेक्टली रनिंग दिस कोड एंड सी द आउटपुट। सी द आउटपुट, सी द आउटपुट। ऋषभ, ऋषाली, ऋषि, ऋषाली एंड ऋषि। सी जब मैंने प्रिंट एलएन बोला है, एलएन का मतलब है न्यू लाइन, न्यू लाइन। एलएन का मतलब है न्यू लाइन। क्लियर? ऋषि एंड ऋषाली क्लियर? क्लियर है? तो अभी इंटरव्यू क्वेश्चन पे जाते हैं और अभी मुझे बताओ कितने लाइन में आउटपुट। मैंने देखो एलएन हटा दिया, मैंने यहां से एलएन हटा दिया। अभी मुझे बताओ आउटपुट कितने लाइन में। सोच के आंसर देना, ठीक है? सोच के आंसर देना गाइस। आपको और इजी कर देता हूं मैं, अगर ऐसे चाहिए तो ऐसे कर देता हूं। चलो अभी सोच के आंसर देना मुझे। चलो इजी कर दिया मैंने और यहां से आंसर दो। 2 lines, 2 lines, 2 lines. Okay, most of you are saying 2 lines. Anyone is with me for 3 line? कोई नहीं है मेरे साथ? या 4 line? Nikat is with me. Okay, Nikat is saying 3 line. Okay. Yogesh is also. Aishwarya is also. Prajila also. Santosh with 4. Anjani with 3. Pragati 3. Rushali 3. Yogesh 3. Pratham 3. Oh my God. सब लोग मेरे साथ आगे। आप लोग नहीं जानते हैं, मैं जानबूझ के बोलता हूँ ऐसा। मेरा आंसर गलत भी रहे तो मैं जानबूझ के बोलता हूँ। डोंट जंप ऑन मी, ओके? याद रखना। ओके चलो जिन्होंने 2 लाइन बोला बताओ पहले 2 लाइन वाले क्या प्रिंट होगा कौन से लाइन पे। यू कैन सिंपली राइट दीपक एंड शलाका का डी एन एस, त्रिवेणी प्रतिभा का टी एन पी, दैट इज ओके। ओके अगर आपको शॉर्टकट में आंसर लिखना है तो आई एम ओके टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप अपना खुद का पैटर्न बनाना चाहो तो ओके। टेल मी फर्स्ट लाइन, लाइन वाइज। ओके इन द फर्स्ट लाइन दीपक एंड शलाका, अंकुश इज सेइंग। ओके भूषण, ओके सो 2 लाइन। पहले लाइन पे दीपक एंड शलाका, सेकंड पे त्रिवेणी एंड प्रतिभा। ओके 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 ये हो गया 2 लाइन जिन्होंने बोला। नाउ द पीपल हु आंसर 3, उनका आंसर बताओ जिन्होंने भी 3 बोला है। एक साथ लिखना आंसर, ओके? मुझे ऐसे पता नहीं चलता बिकॉज सो मेनी पीपल आर गिविंग देयर आंसर। ओके D, S, T and P. Very good, Revati. Revati is giving D, S, T and P. Okay. Very good, Deepak, Shalaka, Triveni and Pratibha. Okay, Yogesh. Very good. Sanjana एक साथ आंसर लिखना आप। ओके अपूर्वा, वेरी गुड, वेरी गुड निकत। गायत्री, ऐश्वर्या एक लाइन में आंसर लिखना प्लीज, क्योंकि मुझे ऊपर का पता नहीं आपने क्या लिखा। ओके दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। Okay, very good, Anjani, Rishi. Good, good. So guys, let me execute, let me save and now let me execute this program। और अभी आपको
जिन्होंने 3 लाइंस में कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है. ओके, लेट्स सी. Can you see the first line Deepak, second line Shalaka and Triveni, third line Pratibha. क्यों? 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 और ये है इंटरव्यू क्वेश्चन. हम लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं. ये है इंटरव्यू क्वेश्चन और हम लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं. अभी मैं बताता हूं आपको क्यों. ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं क्यों. प्रिंट एलएन, दो कमांड है मेरे पास, प्रिंट एलएन एक और दूसरी प्रिंट. पहले मैं बता दूं आपको प्रिंट एलएन का क्या मतलब है. प्रिंट एलएन का मतलब है वो क्या बोलता है, सुनो. ये कमांड क्या बोलता है, सुनो आराम से, बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके. प्रिंट एलएन बोलता है प्रिंट फर्स्ट, तो उसने दीपक प्रिंट कर दिया. प्रिंट फर्स्ट एंड देन जंप ऑन द न्यू लाइन, तो कर्सर आ गया यहाँ पे. प्रिंट एलएन क्या बोलता है, प्रिंट फर्स्ट, तो उसने दीपक प्रिंट कर दिया. एंड देन इट से जंप ऑन द न्यू लाइन, तो कर्सर आ गया न्यू लाइन पे यहाँ पे. सेकंड लाइन में उसने बोला कमांड सिर्फ प्रिंट, तो यहाँ पे कर्सर था तो उसने यहीं पे शलाका प्रिंट कर दिया. तो मेरा कर्सर शलाका के एंड में है. डू यू थिंक मैंने यहाँ पे कहीं पे भी न्यू लाइन पे जाने को बोला? कहीं पे भी मैंने बोला इसको न्यू लाइन पे जाओ? कहीं पे भी बोला है मैंने? नो, नो, नो. तो मेरा कर्सर यहीं पे है, शलाका के बाद में यहीं पे रुक गया. ये देखो, त्रिवेणी से पहले मेरा ये कर्सर आ गया. फिर से थर्ड लाइन पे जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट पे, और उसने क्या बोला, प्रिंट फर्स्ट, तो उसने प्रिंट कर दिया त्रिवेणी. एंड देन सेड जंप ऑन द न्यू लाइन एलएन. कैन यू सी? तो मेरा कर्सर आ गया यहाँ पे. मेरा कर्सर आ गया यहाँ पे पी के पहले. फिर फोर्थ स्टेटमेंट में उसने बोला सिर्फ प्रिंट, तो देखो उसने सिर्फ प्रिंट किया और मेरा कर्सर वहीं पे है. मेरा न्यू लाइन पे कर्सर दिख रहा है क्या? अभी न्यू लाइन पे कर्सर जा रहा है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड. Now you can answer difference between print ln and print. Now you can answer what it will print. These are the two interview question here. If you want, I can show you another problem statement. Can I? Can I go ahead with another problem statement, guys? Yes? Okay. चलो, अभी बताओ, अभी बताओ कितने लाइन में प्रिंट होगा? Okay, okay, Deepak. Then that was my mistake. I'm so sorry, Deepak. कितने लाइन में? वेरी गुड आफरीन, प्रगति. मैंने जो लॉजिक बोला है उस हिसाब से आंसर देना, ठीक है? प्रिंट एलन प्रिंट का जो डिफरेंस बताया उस हिसाब से आंसर देना. मैं नोट्स भी लिखूंगा नीचे, डोंट वरी. ओके, डोंट बी इन हरी. एनीवन विथ मी ऑन द 3 लाइन? कोई है मेरे साथ 3 लाइन? कोई तो होगा. वेरी गुड निखिल. सी, मैंने बोला कोई तो रहेगा मेरे साथ हमेशा. निखिल इज विथ मी. वेरी गुड. एनीवन एल्स हु बिलीव ऑन मी? निखिल, आपके सिवा कोई बाकी 80-90 पीपल में कोई बिलीव नहीं करता ऑन मी. Okay, Swapnil is saying I am not with you this time. Okay. Okay, okay. Oh, Amruta. Amruta. Hmm.
यस, कर्सर जाएगा थर्ड लाइन पे, बट प्रिंट कितने लाइन में होगा ये क्वेश्चन है। ओके, वो भी मैं दिखाऊंगा। निखिल फिर से सोचो मैंने क्या बोला। ओके चलो, लेट मी रन एंड ओके, मैं पहले आपको एक बार फिर से प्रिंट एलन और प्रिंट का डिफरेंस बता देता हूँ। प्रिंट एलन क्या बोलता है? प्रिंट फर्स्ट एंड देन जंप ऑन द न्यू लाइन। ओ, एम आई ऑडिबल? Am I audible? Karishma, please check your internet connectivity. Okay, I'm audible. I believe so. Oh, छोड़ दो, मेरा internet speed much more better. Okay, so hopefully I am audible. Okay, Ankush, check your internet connectivity. Okay, please. So इसने क्या बोला है? Print ln command क्या बोलता है? Print first and then jump on new line. Print first and then jump on new line. और print बोलता है only print. और कर्सर प्रिंट करने के बाद एंड में जाके रुक जाना। क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर? यस यस यस, इज इट क्लियर एवरीवन? निखिल, निखिल अभी सोचो जो मैंने बोला, आपने मुझे मेरे साथ यू आर जंपिंग, यू गॉट इट? ओके, so let's run and see the output guys. So print first, क्या प्रिंट किया उसने? दीपक, and then jump on the new line. उसने बोला प्रिंट शलाका, प्रिंट कर दिया और कर्सर यहीं पे रुक गया। फिर उसने बोला फिर से प्रिंट त्रिवेणी, फिर से त्रिवेणी प्रिंट किया, कर्सर यहीं पे रुक गया। फिर आया लास्ट लाइन पे प्रिंट, तो प्रिंट फर्स्ट एंड देन जंप ऑन द न्यू लाइन। तो देखो मेरा कर्सर अभी नेक्स्ट लाइन पे आ सकता है क्योंकि न्यू लाइन पे जंप हो सकता है। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस एवरीवन? कैन यू सी दिस? तो print ln, it will print first and then jump on the new line. Okay, और print क्या बोलता है? It will print and stay at the end of print. Got my point? Not jump to new line. Got my point? Got my point? The difference. The difference. Is it clear now? Is it clear now? Is it clear now? Everyone, Nikhil, for you also, okay? ये क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है सबको? यहां तक क्लियर हुआ? सी, हम लोगों ने आज कितना देखा है? एंड ऑफ स्टेटमेंट, स्कोप स्टार्ट, एंड, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, कीवर्ड्स, व्हाट इज मेन। फिर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं डबल कोट में, हाउ डू वी रन इट, व्हाट इज प्रिंटलन, व्हाट इज प्रिंट, व्हाट इज द आउटपुट। गॉट माय पॉइंट गाइस? गॉट माय पॉइंट गाइस? कैन वी मूव हेड? कैन वी मूव हेड? सो अभी मैंने आपको बोला था एंड ऑफ स्टेटमेंट,
ये लो, एक ही लाइन पे मैंने 2 स्टेटमेंट दे दिए। अच्छे लग रहे हैं? किसी को अच्छा लग रहा है ये देखने में? किसी को भी अच्छा लग रहा है ये? मैं 4 भी दे सकता हूँ, ऊपर के 2 भी वहीं पे दे सकता हूँ। डू यू थिंक इट लुक्स गुड? I am saying end of statement is correct. But do you think this looks good? No. कोड का रिव्यू कमेंट सबसे पहले आएगा। What are you doing here? मंगेश, अच्छा लग रहा है? राइट? सो कोड कमेंट्स आ सकते हैं हमको, राइट? सो पहले से ही अवॉइड करो और प्रॉपर कोडिंग गाइडलाइंस फॉलो करो। अभी क्लियर है सबको? कैन आई मूव हेड फॉर द नेक्स्ट देन? सो अगेन गाइस, नहीं है क्लियर? क्लियर है, ओके। मंगेश ने आंसर दिया, ओके। सो I'll repeat my question one more time. Guys, do you think the speed is okay? You are understanding the concept जो मैं बता रहा हूँ? मैंने आपको बोला था बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको सबसे पहले समझनी है, बाकी जावा तो मैं आपको इजीली समझा दूंगा, वो मेरा काम है। वो मेरा काम है आपको कैसे इसमें ये करना, मोल्ड करना। बट इज दिस कॉन्सेप्ट एंड द स्पीड इज ओके? अगर स्पीड में आपको लग रहा है नहीं मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो मुझे बताइए, या अगर आपको मुझे और स्लो करवाना है तो मुझे बताइए। दैट्स ओके, नॉट एन इशू। It's perfect. Okay. Okay. Perfect. 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 Perfect, guys. Perfect. So I believe then my speed is okay and there is nothing needs to be slow down or increase. Okay. And you're understanding the concept. That's what I am very much happy to hear these things. Okay. Chalo then. Now let's move to the very important thing. ये हम लोग मंगेश देखेंगे थोड़े दिन के बाद। ओके, ये देखेंगे, ये मुझे आपको समझाना है। मैंने बोला 2-3 सेशन के बाद मुझे आपको ये पूरा मेन ही समझाना है, अभी नहीं। अभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, ये मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी मैं नहीं चाहता कि आपको बेसिक से एकदम बाहर आके आप थोड़ा सा एकदम से आउट ऑफ स्कोप हो जाओ। मल्टी लाइन कमेंट, नो प्रॉब्लम प्रशांत। सो मल्टी लाइन कमेंट का मतलब है, चलो अभी आपने ये मेन मेथड बनाया, ये क्यों बनाया, इसके लिए आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इस टाइप से मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, मैंने लिख दिया दिस इज माय एंट्री पॉइंट विच विल हेल्प मी टू रन कोड। ये हो गया एक लाइन। दूसरा, अभी कौन सी मेथड है, टाइप ऑफ मेथड, मैंने लिख दिया टाइप ऑफ मेथड। तो मैंने बोल दिया टाइप ऑफ मेथड, यहाँ पे स्टैटिक दिख रहा है, मैंने लिख दिया स्टैटिक मेथड। देखो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ वो मेथड का प्रशांत। व्हाट इज रिटर्न टाइप? जब वॉइड होता है उसका मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। सो मैंने बोल दिया वॉइड, दैट मीन्स नन, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? मैंने एक मेथड का पूरा डिस्क्रिप्शन मल्टी लाइन में दिया। दिस इज द यूज ऑफ मल्टी लाइन कमेंट्स। दिस इज द यूज ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन करना है तो देखो मैंने यहीं पे कर दिया, आई एम गोइंग टू प्रिंट माय फर्स्ट लाइन टुडे। मुझे यही लाइन के सामने मैंने देखो कमेंट दे दिया, सिंगल लाइन ही चाहिए था, मैंने इसके सामने लिख दिया और मैंने स्पेस बचा लिया। गॉट माय पॉइंट प्रशांत? सो आप मल्टी लाइन कमेंट देते हो बैकस्लैश स्टार और स्टार बैकस्लैश के बीच में, ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। बीच में आपको जितना लिखना है लिखो, ऐसे लिखना है लिखो। अंडरस्टैंड?
अंडरस्टैंड? यस, ओके। व्हाट आई डू, जो उस दिन का मैंने यहाँ पे आपका पूरा नोट्स बनाया था वो मैं यही क्लास में ऐड कर देता हूँ, या ये वाले पहले वाले क्लास में ऐड कर देता हूँ इसमें। ठीक है, ये देखो मैं मल्टी लाइन में ऐड कर रहा हूँ, और ये हो गया यहाँ के बीच में। अभी देखो मैं यहाँ पे स्टार नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वो बीच में पूरा प्रिंट कर दिया, तो ये सारे कमेंटेड है। ये देखो ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक मैंने आपका सेव कर दिया, और ये भी आपको मिल जाएगा कोड में। ठीक है, क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? वो भी प्रतिभा देखेंगे, देखेंगे, आप रुको थोड़ा, हर चीज देखेंगे। ओके, हमको अगर स्पेस देना है तो हम यहाँ पे इसके बाद ऐसा भी दे सकते हैं। ये देखो, ये प्रतिभा के बाद, सुरेखा के बाद, शलाका के बाद, दीपक के बाद स्पेस, इस टाइप से आप कर सकते हो और आपको स्पेस मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप रन करोगे तो देखो अभी आपको स्पेस के साथ दिखेगा, तो बीच में स्पेस दिखेगा, देखो, कैन यू सी दिस? है ना, मैंने यही पे स्पेस दे दिया, ये हमारा मिसिंग था, इसीलिए वो एक के बाद एक ऐसे चिपक के दिख रहा था आपको पहले। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, चलो अभी आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाता हूँ। मैंने बोला था पैकेज क्या है, तो हमने बोला था पैकेज इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस। चलो एक और क्लास बनाते हैं इसके अंदर। क्लास का नेम है डेटा टाइप। क्लास का नेम है डेटा टाइप। क्लास का नेम है डेटा टाइप। मैंने एक और, तो ये देखो क्लास के अंदर कलेक्शन दिख रहा है, दिख रहा है, कलेक्शन ऑफ जावा क्लासेस। कैन यू सी दिस? एवरीवन देखो, एक पैकेज में मल्टीपल क्लासेस, कलेक्शन। कैन यू सी? क्लियर है एवरीवन? इसलिए गया भूषण क्योंकि हमने नया क्लास बनाया। ये देखो डेटा टाइप गोज इन न्यू विंडो, क्योंकि नया क्लास बनाया भूषण। अभी आपका जावा सेशन 2 क्लास ये इधर है, ये मैंने नया क्लास बनाया, तो नया विंडो ही बनेगा नए क्लास का। यस और नो? गॉट माय पॉइंट? ओके, चलो अभी मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन। बताओ, क्वेश्चन क्लियर है? व्हाट इज डेटा टाइप? Absolutely right, Repti. Absolutely right. It is define a type of data I wanted to store. Type of data I wanted to store. Type of data I wanted to store. Got my point? Got my point? Got my point? Got my point? ओके, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, चलो अभी किसी एक का हम लोग पूरा डिटेल लेते हैं। ओके, किसी भी एक का। सो हम किसका ले लू? लेट्स टेक सुशील। ओके,
So let's say I want to store Sushil का पूरा डिटेल, पर्सनल डिटेल, okay, of Sushil. Name. Just give me 2 minutes. So name. What is name, do you think? Alphabet? Alphabet? Yes. Alphabet or character? चलो कुछ भी. Alphabet पकड़ लो तो collection of character होगा, ठीक है? Alphabet. सुशील. मैंने बोला. Age. Do you think number or numeric? Numeric number, right? Salary. Do you think again a number but this time decimal हो सकता है 10,000 50 पैसा, 10,000 30. Yes or no? Let's say gender. M or F, single character. Do you think? Yes or no? Yes or no? Yes or no? करेक्ट है. अभी मैंने पूछा इज ही करंट एम्प्लॉय, करंट एम्प्लॉय है या नहीं है, तो मैं बोलूंगा आइदर यस या मैं बोल दूंगा आइदर ट्रू और नहीं है फॉल्स. नहीं है. यस और नो. करेक्ट है. करेक्ट है गाइस. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एडिंग? सो ये टाइप ऑफ डेटा मुझे स्टोर करना है कि सुशील का नाम, सुशील का एज, सुशील का सैलरी. अगर मेरी एक कंपनी है और मुझे इनको स्टोर करना इनका पूरा डिटेल, तो जेंडर एंड सुशील का करंट इज दैट ही इज अ करंट एम्प्लॉय और हमारा प्रीवियस एम्प्लॉय होके चला गया है, तो अभी करंट एम्प्लॉय नहीं है तो मैं फॉल्स बोल दूंगा. है तो मैं लिख दूंगा ट्रू, ही इज आवर करंट एम्प्लॉय. गॉट माय पॉइंट टिल दिस? एवरी इंडिविजुअल प्लीज आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको. ये समझ में आ रहा है? ये डेटा मुझे स्टोर करना है, इसीलिए मैंने बोला व्हाट इज डेटा टाइप. इट इज डिफाइन अ टाइप ऑफ डेटा आई वांटेड टू स्टोर. तो इसलिए मैंने टाइप लिखा. देखो ये अल्फाबेट रहेगा, ये नंबर रहेगा, ये न्यूमेरिक रहेगा नंबर, ये हो सकता है नंबर डेसिमल रहे, जेंडर मेरा कैरेक्टर रहे, राइट, ये मेरा ट्रू फॉल्स रहे. सो मेल आईडी इज योर अल्फाबेट, राइट संगीता, और अल्फा न्यूमेरिक. अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक. Date of birth is a number. It's a date format. Okay, it's a number numeric. कभी भी डेट ऑफ बर्थ 12 के बाद लेट से मेरा है 12th में, सो इट शुड नॉट बी 12.5 में. यस और नो? एग्रीड? एग्रीड? व्हाट माय पॉइंट गाइस, यहां तक सबको? तो ये है डेटा टाइप. अलग अलग वो सब देखेंगे मंगेश.
Special characters comes under string. Okay. अल्फा न्यूमेरिक, मैं यही बोल रहा हूँ आपको, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब सिर्फ नंबर और अल्फाबेट नहीं होता है, आपका स्पेशल कैरेक्टर होता है उसमें, राइट? यस। क्लियर है यहाँ तक? बर्थ डेट इज नंबर रजिला, वही मैंने बोला, इट्स अ नंबर। ओके, वही मैं बता रहा था, इट्स अ नंबर। चलो, अभी जावा क्या बोलता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावा? हु इज गोइंग टू आंसर? Mangesh is saying 2, 4, Karishma, Shalaka 2, Pratham 2. Swapnil 8, very good. Revati 2, Pratibha 2, very good. But there are two types of data type in Java. Number one, it's a primitive data type. Okay, primitive data type. मैं शॉर्टकट में लिख दिया डेटा टाइप. इज दैट ओके? समझ में आएगा सबको? इज दैट ओके? यस. एंड सेकंड इज योर a non-primitive data type. Primitive and non-primitive. Primitive data type and non-primitive data type. There are two types. अभी इसका एक वन लाइनर आंसर सुन लो कि क्या है प्रिमिटिव, क्या है नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव इज प्री डिफाइंड बाय जावा. अनप्रिमिटिव का मतलब है यूजर डिफाइंड इन जावा. नॉन प्रिमिटिव किसने बनाया है? यूजर ने. प्रिमिटिव किसने बनाया है? जब जावा बना था उसने प्री डिफाइन करके रखा है जावा कोडिंग में. These are a predefined in Java. Primitive data type is a predefined in Java, whereas non-primitive data type is user defined in Java. This is predefined by Java. This is user defined in Java. यहां तक क्लियर है? प्रीडिफाइन क्या हो सकता है? कि जब जावा बना, जावा ने पहले से डिफाइन किया है, जैसे रिजर्व कीवर्ड. यस और नो? यस और नो? जब जावा बना, जावा ने जैसे रिजर्व कीवर्ड बनाए, वैसे ही जावा ने प्री डिफाइंड डेटा टाइप बना के रखे हैं. यस और नो? यस और नो? और बाद में जैसे जैसे यूजर ने जावा को यूज शुरू किया, वैसे वैसे उन लोगों ने अपने अपने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बनाए, जो कि अभी बहुत चलते हैं. प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एवरीवन?
Yes, yes. So do you want me to go in detail? Okay, definitely it's not having a time today. So what we can do now, we'll go in detail about primitive and non-primitive in the next session. And I'm going to cover minimum 4 to 5 interview question, guys, in the next session. Minimum 4 to 5 questions in the interview preparation, okay? For the next session, data type के minimum 4 to 5 questions. यहाँ तक clear है? Please do not miss such sessions, okay? बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जब हम रन टाइम सीखते हैं जो कि हमको समझते हैं, ये याद रखना. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Okay, so I hope you are enjoying the sessions, guys. Okay, and I am really happy to do any type of, I mean, any type of your problem statements to be solved. Always drop an email to the support team. They will try to answer you as soon as possible. Support team is responsible to solve any of your problem statement. Okay, first. इसीलिए आपका कुछ भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो आप पहले तो अपने ग्रुप में भी डिस्कस कीजिए, अपने ग्रुप का भी यूटिलाइजेशन कीजिए. हो सकता है आपका प्रॉब्लम किसी और का प्रॉब्लम हो और उन्होंने वो सॉल्व कर दिया हो. ओके, थैंक यू सो मच प्रथम, स्वप्निल. You can delete, Mangesh, anything, class, package, anything you can delete. Yes, project also. You can delete it, not an issue. So if you wanted to delete, you can just go here, right click, and can you see delete? कोई भी class पे right click कर दीजिए, delete कर दीजिए. You can delete it. पैकेज डिलीट करना है, राइट क्लिक कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए. यू कैन डिलीट. प्रोजेक्ट राइट क्लिक कीजिए, डिलीट कर दीजिए. यू कैन डिलीट. गॉट माय पॉइंट? ओके, यू कैन दीपक, नॉट एन इशू. मैंने बोला था जो आपके एडिटर्स है, दोज आर जस्ट एन एडिटर. ओके, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, यू कैन यूज एनीथिंग, दैट्स ओके. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, प्लीज. ओके, and guys, for next 4 to 5 months we all need to work as a family. Everyone's problem statement is our problem statement. ये याद रख के चलना. तो कोई भी क्वेश्चन पूछता है, अगर किसी के पास आंसर है तो ट्राई टू आंसर. दैट विल हेल्प यू टू लर्न, दैट विल हेल्प दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड टू क्विकली. ओके, ओके, क्लियर है? यू कैन स्विच फ्रॉम हियर, फाइल एंड स्विच वर्कस्पेस. ये मल्टीपल वर्कस्पेस आते हैं अंकुश. फाइल, स्विच वर्कस्पेस. ओके, प्लीज सी द वीडियो. जिसका इंटरनेट थोड़ा स्लो था, जाके वीडियो फिर से देखना एक बार और फिर से ट्राई करना अपने एंड पे. ओके, प्लीज. And thank you so much for your wishes for the Teachers Day, guys. Thank you so much. I'm also learning from all of you. Yes, you can. Control Z कर दो, roll back हो जाएगा मंगेश. Clear? Okay, guys. Chalo then. Let's meet and we'll again meet in the next session. Very important session, as I said. 4 to 5 interview question I'm going to cover up in the next session.
Please do not miss such sessions. Those are very important. Thank you so much, Pratham. Okay. Have a good day, guys. Take care. Bye. Thank you, guys.